A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of class 12 B accountancy. As you know very well, we discussed the second part, that is a part B of accountancy. You know very well what is the name of the part B, that is a financial statement analysis. In the whole part B, you can see that firstly we discussed the how company prepare its financial statement. Thereafter, you can see that what is the meaning of financial statement analysis, and thereafter you can see that how company analyze its financial statement with the help of the different tools of financial statement analysis. There are basically few tools which are included in your syllabus as a tools or techniques of the financial statement analysis. The first tool is a comparative statement, which include the comparative balance sheet and comparative statement of profit and loss. The second is a common size statement, which also include the common size balance sheet and common size statement of PL. The third one, in the last period, you can see that the trend analysis, the trend percentage. So you can see that how company analyzes financial statement with the help of the trend percentage. Now we will move to the second last chapter, that is the chapter number 13 of the part B, that is accounting ratio. It is also as a defined as the tools or techniques of the financial statement analysis. यानी accounting ratio भी financial statement को analyze करने के लिए, interpret करने के लिए एक important tool माना जाता है, technique माना जाता है, जिसकी help से different accountants अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं. अकाउंटिंग रेशियो जैसे नाम से ही क्लियर है, ये पूरा चैप्टर रेशियो पे बेस्ड है. रेशियो, यू नो वेरी वेल, रेशियो विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. बेसिकली आपने लोअर क्लासेस में यही डिस्कस किया होगा, यही जाना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो. रेशियो इज अ एक्सप्रेशन इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म which express the relationship between the two variables, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, दैट इज द रेशियो. और अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है कि अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उन स्टेटमेंट में जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उनके बीच में उन वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, साथ ही साथ उस रिलेशन को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, दिस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. So we start the theoretical topic of accounting ratio. So first of all, we discuss the first topic of this chapter, that is what is ratio. So the first theory part of this chapter, that is what is the meaning of ratio. So please note down in your copy, what is ratio? Ratio is the measure of, it is a measure of relationship between two number or values, two numbers or values. So basically रेशियो क्या है, ये मेजर करता है रिलेशनशिप को. किसके रिलेशनशिप को? दो नंबर और दो वैल्यूज के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको मेजर करता है. द रिलेशनशिप मे बी एक्सप्रेस्ड, द रिलेशनशिप, द रेशियो देन कन्वेंस, the ratio can be expressed in following ways. यानी जब हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके डिफरेंट वेज होते हैं. यू नो वेरी वेल, रेशियोज को एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं, कई वेज होते हैं. वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं? द फर्स्ट वे by which we express the ratio, the first one is a simple ratio, that is a simple ratio. Simple ratio is also known as the proportion. What is simple ratio? Suppose अगर हम x और y के बीच में रिलेशनशिप को x से एक्सप्रेस करते हैं, 2:1, 2 proportionate 1. So this is the first way by which we can establish the relationship between the two variables.
यानी x और y के बीच का रिलेशनशिप हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द सिंपल रेशियो, दैट इज अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आप देख रहे हो मैं कैसे रेशियो एक्सप्रेस कर रहा हूं दो चीजों के बीच में, 2:1, so this will be known as the simple ratio. The second type of the ratio by which we can easily represent the ratio, that is a percentage ratio. परसेंटेज रेशियो में बेसिकली होता क्या है, इसमें हम जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो ऐसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक्स और वाई के बीच में, दैट इज 70% और 30%। जेड को भी हम चाहे तो दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे हम सिंपल रेशियो की बात करें चाहे हम परसेंटेज रेशियो की बात करें। तीसरा तरीका होता है जिससे हम रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज अ टाइम रेशियो, टाइम्स रेशियो। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम रेशियो में हम लोग क्या बोल सकते हैं, y is 3 times of x. This is also the criteria, this is also the way by which we can establish the relationship between x and y. इसमें देखो आप ये कह रहा है कि y जो है वो x का 3 टाइम है, so you can see that कि हम रेशियो कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है हम सिंपल फॉर्म में यानी प्रोपोर्शन के फॉर्म में रेशियो को एक्सप्रेस कर दें, या हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें रेशियोज को 70% 30%, या फिर टाइम्स के बेसिस पे हम रेशियो को एक्सप्रेस कर दें कि y जो है x का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, सो दिस इज अ टाइम्स रेशियो। और चौथा तरीका होता है दैट इज फ्रैक्शन रेशियो। फ्रैक्शन इज ऑल्सो द मॉडरेट फॉर्म ऑफ द सिंपल रेशियो। अगर हम सिंपल रेशियो को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, जैसे x और y में हम यहाँ क्या बोल रहे हैं 2:1 का रिलेशन है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं x और y के बीच में 2/3 और 1/3 का रिलेशन, so this will be known as the fraction ratio. So you can see that the accounting ratio यानी अकाउंटिंग डाटा जो है, जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। Either we represent the data, represent the relationship between the two variable in the simple form, in the percentage form, in the times form, in the fraction form. So this will be totally depend on the variable. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने वेरिएबल को किस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। So you can see that what is the meaning of ratio? The basic meaning of the ratio is that it is a measure of relationship between two numbers or values. The ratios can be expressed in the following four ways. The first one is a simple ratio, second is a percentage ratio, third is a time ratio, and fourth is a fraction ratio. Okay, so please note down in your copy. So you can see that the ratio can be expressed in the four following way. The fourth following way is simple ratio, percentage ratio, time ratio and fraction ratio. Okay? यानी कोई भी कंपनी दो वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगी, सो विच आर बेसिकली द फोर्थ वे। सिंपल रेशियो के तरीके से वो रेशियो एक्सप्रेस कर सकता है, परसेंटेज में वो रेशियो को एक्सप्रेस किया जा सकता है, टाइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है और फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। So these are the ways by which any company, any accountant present the relationship between the two variables. Now we will move to the next topic. The next topic is classification of ratio. Classification of accounting ratio. This is a very important part of this chapter. So please be ready, all the students. Classification of accounting ratio. So if we are talking about this chapter, how many types of the accounting ratio from the numerical point of view? So there are basically four types of the accounting ratio. The four types of the accounting ratio. The first type of the accounting ratio is liquidity ratio. Liquidity ratio. The second type of the accounting ratio is solvency ratio.
The third type of the accounting ratio will be activity ratio. Okay, the third one is a activity ratio, and the fourth and last type of the accounting ratio will be a profitability ratio. So they are basically four types of the ratio in your course: liquidity, solvency, activity, and profitability. Liquidity ratio is a ratio which brings out the ability of the firm to honor its short term obligation. यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको कंपनी पे करने के लिए कितना कैपेबल है, यानी लिक्विडिटी रेशियो विच आर रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन को कैपेबल पे करने के लिए कितनी कैपेबल है. विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो, with the help of the solvency ratio, company can check its ability to meet long term liabilities, to meet long term liability. यानी इससे हम ये पता करते हैं इस रेशियो से कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितना कैपेबल है. विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी रेशियो we used to या we analyze the, कह सकते हो, the different elements of the assets, different elements of the assets and their efficiency. So with the help of the activity ratio, company can analysis the different items of assets which are financed through long term funds, long term source of finance या long term funds. यानी बेसिकली जो आपका एक्टिविटी रेशियो होता है ये इस बात को एनालाइज करने के लिए कैपेबल होता है कि जो आपके डिफरेंट एसेट्स हैं, जो डिफरेंट एसेट्स हैं वो अपने जिस लॉन्ग टर्म फंड से क्रिएट हुए हैं उसका कैपेबिलिटी कितनी है. यानी यू नो वेरी वेल, जब कंपनी कोई भी लोन लेती है तो उस लोन से क्या करती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस करती है, और फंड जो होते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स को स्टैब्लिश करती है. तो एक्टिविटी रेशियो हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से किस तरह से कह सकते हो सिक्योर्ड है, कितनी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कितनी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स है. उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म एसेट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं. लाइक एसेट्स में हम ट्रेड रिसीवेबल्स को ले लें, ट्रेड पेबल्स को ले लें, हम ले लें स्टॉक को ले लें, इन्वेंट्रीज को ले लें. तो ये सारे डिफरेंट आइटम, फिक्स एसेट्स को ले लें, डिफरेंट आइटम्स के हम लोग रेशियो स्टैब्लिश करते हैं, उनके कह सकते हो उनके रिलेशन को चेक करते हैं. The fourth type of the ratio is profitability ratio. Profitability ratio is the ratio which is also known as the income ratio. With the help of the profitability ratio, company can analyze its ability of profit. यानी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी प्रॉफिट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि कंपनी अपना सुटेबल प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं कर रही. उसकी प्रॉफिट का रिलेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ चेक किया जाता है, लाइक अ सेल्स. And you know very well, there are basically few types of the profit: gross profit, net profit, operating profit, और profit on capital employed. So basically कई तरह की profits होती हैं, कई तरह का return होता है. So basically with the help of the profitability ratio, company can establish the relationship between the profit and different elements of the profits as well as the revenue from the operation.
So any doubt? So if we are talking about the types of the different ratios, so you can see that there are basically 4 types of the accounting ratio. The first one is a profit. The first one is a liquidity. Second one is a solvency. Third one is a activity, and fourth one is a profitability. So उसमें कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि आपको कितने रेशियो पढ़ने आपको पढ़ने हैं लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो. द फर्स्ट वन इज अ करंट रेशियो और दूसरा रेशियो आपको पढ़ना है दैट इज क्विक रेशियो. सो बेसिकली आपको लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ने हैं. खुश हो गए सर बस 2 ही रेशियो पढ़ने हैं? यस, सिर्फ 2 रेशियो पढ़ने हैं, कोई बात नहीं. सॉल्वेंसी रेशियो में आपको टोटल 4 रेशियोज पढ़ने और सबके फॉर्मूलाज हैं, सबके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. ये है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी में, ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो. दूसरा रेशियो आपको पढ़ना है दैट इज अ डेब्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. थर्ड आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, दैट इज डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, टोटल फंड रेशियो. फोर्थ में पढ़ना है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो. ओके, सो आपको सॉल्वेंसी रेशियो में मेनली 4 रेशियोज पढ़ने. अब हम लोग बात करें एक्टिविटी में सर कितने रेशियो पढ़ने हैं, तो एक्टिविटी में बहुत रेशियो पढ़ने हैं. टोटल 6 रेशियोज आपको पढ़ने हैं एक्टिविटी में. तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, शॉर्ट में नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग बुक में पूरे नाम लिख लेना उसके. एक्टिविटी में आपको पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. द फर्स्ट वन इज अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सेकेंड वन इज अ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. सो जो टीआर का मतलब है वो है टर्नओवर रेशियो. आई फॉर इन्वेंट्री, टीआर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. उसके बाद पढ़ना है आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है उसी तरह से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है. फोर्थ टाइप का पढ़ना है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल, यू नो वेरी वेल व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो उसी तरह से आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ना है. और पढ़ना है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो. एंड नंबर 6 इज current assets turnover ratio. So under the activity ratio you have to study, you will be the study about the different types of the activity ratio or turnover ratio. Activity ratio is also known as the turnover ratio which include the inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, fixed asset turnover ratio, working capital turnover ratio and current asset turnover ratio. And at last प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी आपको डिफरेंट रेशियो पढ़ने हैं और ये अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है आपके कोर्स में लगभग 7-8 रेशियोज आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के. पहला रेशियो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. मैंने आपको बताया था ना कई तरह के प्रॉफिट्स होती हैं, तो उसी के बेसिस पे आपके डिफरेंट रेशियो भी एस्टेब्लिश होते हैं. The first profitability ratio is a gross profit ratio. Second is a net profit ratio. Third one is a operating profit ratio. Fourth one is a operating ratio. Operating profit ratio और operating ratio में different होता है, तो confuse मत होइएगा. Operating profit ratio अलग है, operating ratio अलग है. और next आपका आता है इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. और भी बहुत छोटे छोटे रेशियोज हैं जो टाइम टाइम पे आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, बट बेसिकली आपको इतने रेशियो मिनिमम पढ़ने हैं जो आप अपने बुक में अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिख लीजिए कि आपको टोटलिटी में
4 बेसिक रेशियोज हैं अकाउंटिंग के, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, एक्टिविटी को कहते हैं टर्नओवर रेशियो भी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में 4, डेब्ट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, डेब्ट टू टोटल फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड एक्टिविटी रेशियो पे इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर रेशियोज पढ़ने हैं। सॉरी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपको टोटल 5 मेन रेशियोज पढ़ने हैं। वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपरली वे में 1 बाय 1 पढ़नी है। तो अगर हम पूरा कंबाइन करें, यानी कह सकते हो कि मेनली 4 रेशियोज हैं, और चारों रेशियोज को अगर एक्यूमुलेट कर दें तो टोटल आपको 2, 4 हो गया 6, 6, 12, 12 एंड 5 टोटल 17 रेशियो आपको मेनली पढ़ने हैं। 17 रेशियोज के आपके फॉर्मूलेज आपको मुंह पे याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। और इनके कुछ सब रेशियोज हैं। जैसे कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछूं तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस का भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड दिस। सो यू कैन सी दैट ये 17 जो रेशियो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव रेशियोज हैं, जो बड़े जो कॉमन रेशियोज हैं, जो मेन रेशियोज हैं। इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें और भी कई तरह के सब्सिडीज फॉर्मूलास को यूज करना पड़ता है। यानी आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमें 17 रेशियो पढ़ने हैं, 17 रेशियो के फॉर्मूले याद करने, नहीं। 17 रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट अदर टाइप्स के भी फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे जो उस रेशियो को कैलकुलेट करने में मेरी हेल्प करेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज को याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये लेके नहीं सोचना है, ये लेके नहीं चलना है कि सर हमें सिर्फ इतने ही रेशियोज पढ़ने, नहीं। आपको टोटल में 17 मिनिमम पढ़ने हैं और उसको याद करने के लिए आपको कई तरह के फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो हम 1 बाय 1 एक एक रेशियोज को उठाएंगे। जैसे हम पहले लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, फिर हम सॉल्वेंसी पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा। So our first ratio is liquidity ratio. So what is liquidity ratio? First of all, please note down in your copy. So liquidity ratio are the ratios which helps to bring out the ability of firm to honor its short term obligation. यानी liquidity ratio ये हमें बताता है बेसिकली कि कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कंप्लीट करने के लिए, पे करने के लिए कितना कैपेबल है। सो लिक्विडिटी रेशियो में हम ये भी पता कर ले कि लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूलास क्या क्या हैं। सो पहला रेशियो आता है लिक्विडिटी रेशियो में, वो होता है करंट रेशियो। सो बेसिकली करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय current liability. What is the formula of current ratio? Current ratio equals to current assets divided by current liability. और ये रेशियो हमेशा सिंपल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, x is to y। इसमें एक्सप्रेस करेंगे, आप इसको कभी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ना इसको आप कभी टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। करंट रेशियो या कह सकते हो लिक्विडिटी रेशियो हमेशा सिंपल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 2:1, 1:1 इसी में एक्सप्रेस किया जाता है। So what is the formula of current ratio? Current ratio equals to current asset divided by current liability and this ratio expressed in the simple proportion। जैसे इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रेशियोज को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आप कहोगे सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, तो ये बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एनी एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन
1 ईयर। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट जो 1 साल में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। और क्या आता है आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और क्या आती है आपकी, प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या आता है आपका, और आता है आपका स्टॉक। स्टॉक में आप लोग इन्वेंट्री भी कह लो, इन्वेंट्री। और क्या आता है, यस, एक्रूड इनकम, एनी इनकम विच इज earned but not received. So these are the basic example of current assets. ओके अब आपके मन में आ रहा होगा सर करंट लायबिलिटी के भी आइटम्स बता दो, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है मैं बता देता हूं, मैं एक ही बार बताता हूं, उसके बाद आपको बताना होता है, तो आप याद कर लेना करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम आते हैं। जस्ट अपोजिट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का अपोजिट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर कहोगे ओवरड्राफ्ट। ट्रेड रिसीवेबल का अपोजिट क्या होता है सर, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। प्रीपेड का अपोजिट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सब मैंने 11th में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक्रूड इनकम का अपोजिट क्या होता है, एक्रूड इनकम का अपोजिट होता है एडवांस इनकम, यानी कोई इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई होगी, एडवांस इनकम। और कुछ चीजें बच गई, यस, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज आल्सो करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है, प्रपोज डिविडेंड। अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है तो उसको भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। और क्या क्या चीजें होंगी सर इसमें, इसमें और आएगा लोन पेबल दिस ईयर, कह सकते हो इस साल जो भी आपको लोन पे करना है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। द नेक्स्ट रेशियो विल बी द लिक्विड क्विक रेशियो। अब देखिए क्विक रेशियो को हम लोग कई नाम से जानते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो को हम कितने नाम से जानते हैं, बहुत नामों से जानते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। सो पहले तो हम लोग ये जान लें क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यानी यहां पर अभी तक क्या था करंट रेशियो में, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्या हो गया, क्विक रेशियो में फॉर्मूला चेंज हो गया, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और इस रेशियो को भी हम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्विक रेशियो का और क्या नाम होता है, क्विक रेशियो का बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे एसिड टेस्ट रेशियो। एग्जाम में कोई और नाम पूछ देगा तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। एसिड टेस्ट रेशियो नाम होता है, और नाम होता है लिक्विड रेशियो भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो दिस इज अदर नेम ऑफ द क्विक रेशियो, ये कुछ बातें अपने दिमाग में रख लो। और सर इसमें करंट लायबिलिटी की मीनिंग सेम है, हाँ करंट लायबिलिटी का आइटम्स वही सेम है, चेंजेस कहां होंगी सर, लिक्विड एसेट्स क्या होता है ये बताइए, क्योंकि हम ये जानते हैं करंट एसेट्स क्या होता है, ये लिक्विड एसेट्स पहली बार सुन रहे हैं। बेसिकली लिक्विड एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हाईली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो जाती है। इससे भी ज्यादा लिक्विड होती है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, वो अलग बात होती है, वो तो इतनी वो विच आर इक्विवेलेंट टू द कैश इन कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड रेशियो का मतलब है जो ऑन डिमांड कैश में कन्वर्ट हो जाए।
और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होगा, जो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, बस मेरे जेब में है, मुझे उठाना है। तो लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं उसको नोट डाउन कर लो। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यानी जब आप करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक को यानी इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हो तो ये आ जाता है लिक्विड एसेट्स। यानी कि ऑल द करंट एसेट्स which are not included the inventories, which are not included the prepaid expense, these will be known as the liquid assets. liquid assets को हम quick assets भी कहते हैं, इसलिए इस पे भी मत कंफ्यूज होना कि सर ये quick assets और liquid assets में क्या डिफरेंस है। So basically, what is the formula of quick ratio? Quick ratio equals to liquid assets divided by current liability. Quick ratio is also known as the acid test ratio or liquid ratio. Liquid ratio is also known as the quick assets. Quick assets equals to or liquid assets equals to current assets minus closing stock minus prepaid expense. And what is the explanation of current liability? The explanation of current liability is same as which are adopted in the current ratio. So I hope today we cleared all the topic very easily. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. And if you have any doubt, so please